Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide. Today we'll be talking about flow control statements in Python. In the series of Python, we have already discussed data types, operators and input-output statements in Python. So if you're new to my channel, you can find the link of playlist in the description box where you will find all the previously uploaded videos. Also in the description box, you can find the link of my blogs, which whatever I teach here, the notes are uploaded there. You can check it out. Now let's start today's topic, flow control statements in Python. Flow control statements are those special statements which help us decide or control that in which order the statements are going to execute. Now, each and every program follows the simple default sequential flow of execution, that is, one after the other the statement gets executed. By default, every program follows sequential flow of execution, but if we want to take the control to our hand, that is, we don't want the Python interpreter to decide the flow control, we want to decide the flow control by ourselves, then we can use flow control statements to change the whole sequential flow of execution to our control in our way. That is, we are going to decide that in which order the statement should execute. For example, consider this program. I have written 9 executable statements in Python. All these statements are print statements, that is the output statements, as we already know. So all these statements are going to follow the normal or the default sequential flow only. Okay, so first of all, when the program will start, the first statement will execute and then only the second statement will execute. It can never ever happen that the second statement will execute before the first statement gets executed. So each and every statement will be executed after its previous statement is executed. So this is known as sequential flow. But if we want that statement number 2 or statement number 3 should execute before statement number 1, or let us suppose we don't want statement number 4, 5, 6 to execute at all, then under normal condition this cannot happen. But using flow control statements, we can take the control to our hand. We can decide by ourselves that we want these statements to execute or not. So it will be in our hand. If we want these statements to execute, they will execute. If we don't want these statements to execute, they will not. Okay, so the control is in our hand. That is why we call these statements as flow control statements. So before jumping to the proper syntax and all, let us study the types of flow control statements. Flow control statements are of 3 types. First type is conditional statements, then iterative statements, and then we have to study transfer or jump statements. Inside the conditional statements, as the name suggests, we have to keep those statements which specify some condition and all. So inside conditional statement, we have if else, if elif else. Okay, in Python switch statement is not there. Okay, inside the iterative statements we have to study the looping concept, and in Python we have for and while loops. Do while loop is not there in Python, but it is there in C, C++ and Java. Okay, in transfer or jump statement we have to study break, continue and pass statement. So we have particularly 3 types of flow control statement. We are going to cover this topic in 3 different videos so that we can cover each and every type in detail. Okay, so today we will start with conditional statements. Conditional statements, as the name suggests, are used to change the flow of execution in a way that one or more statement will execute if and only if a condition satisfies. Otherwise, they won't execute at all. अब इसका क्या मतलब बनता है कि एक कंडीशन के बेसिस पे अगर हम चाहते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो चेंज हो, तो बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है कि सीक्वेंशियल फ्लो ही फॉलो होने वाला है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम फ्लो को चेंज करें तो उसके लिए हमारे पास ढेर सारी स्टेटमेंट्स होती हैं. वन ऑफ दो स्टेटमेंट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें आप कंडीशन डिफाइन करते हो और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कुछ स्टेटमेंट्स चलेंगी, अदरवाइज अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी. ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में मैंने जैसे कि आपको बताया 3 आपको चीजें पढ़नी होती हैं. इफ स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखते हैं. इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है इफ
इफ एक कीवर्ड है, उसके साथ में आपको कंडीशन लिखनी होती है, देन आपको कॉलन के साथ में स्टेटमेंट लिखनी होती है। अगर आप चाहते हो कि इस इफ कंडीशन के साथ आप सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट अटैच करो, अटैच से मेरा मतलब है कि कंडीशन के बेसिस पे आप कौन सी स्टेटमेंट चाहते हो कि एग्जीक्यूट हो, तो उस स्टेटमेंट को आप इसके साथ जोड़ दोगे यूजिंग कॉलन। ओके, एक स्टेटमेंट लिखनी है तो ये वाला सिंटेक्स चलेगा। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को आप अटैच करना चाहते हो इस इफ ब्लॉक के साथ, तो नेक्स्ट आपके पास ये सिंटेक्स आ जाता है। आपको लिखना होता है इफ, फिर आपको स्पेसिफाई करनी होती है कंडीशन, देन आप कॉलन के साथ नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट लाइन में आप एक अलग तरीके का सिंटेक्स देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो 6 स्पेसेस आगे से शुरू हो रही हैं, ना कि इफ के बिल्कुल नीचे से। आपको याद हो, अगर आप ऑलरेडी C++ जावा जानते हैं तो आपको पता होगा कि C++ जावा में ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए आपके पास ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं। कोई भी ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स होंगे, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का अपना काम है। हम सेट और डिक्शनरी के आइटम्स को डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज कर सकते हैं। पाइथन में एक ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए, ब्लॉक का मतलब और कुछ नहीं होता है, एक आपने ग्रुप बना देना है, वो ग्रुप आप कर्ली ब्रेसेस की मदद से तो नहीं बना सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे पाइथन में क्या मिला है, आइडेंटेशन। ओके, आइडेंटेशन से मेरा क्या मतलब है, आइडेंटेशन से मेरा मतलब है कि अगर आप कोई ब्लॉक डिफाइन करना चाहते हो पाइथन के अंदर, तो आप स्पेसेस का यूज करोगे जिससे हमें पता लग जाए कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक किसके अंदर आ रहा है। अगर आप लिखते हो इफ कंडीशन, देन आप कॉलन का यूज कर रहे हो, और उसके बाद जो भी आप लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट 6 स्पेसेस आगे से शुरू होता है। जब भी आप कोई भी पाइथन का IDE यूज करोगे, तो जैसे ही कॉलन के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो 6 स्पेसेस आगे से आपका कर्सर शुरू होने वाला है। नाउ दैट डिफाइंस कि जो भी आप स्टेटमेंट अब लिखोगे वो आने वाली है इफ कंडीशन के अंदर। तो ये है आपकी इफ कंडीशन एंड कॉलन। जैसे ही उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस ब्लॉक के अंदर आपने लिखी हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्पेस रखी हुई है जो मैं आपको बॉक्स के जरिए दिखा रही हूँ, यानी कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स इफ के बिल्कुल नीचे से नहीं शुरू होके कहाँ से शुरू हो रही है, 6 स्पेसेस आगे से शुरू हो रही हैं। ये मुझे बताता है कि स्टेटमेंट 1 से लेकर स्टेटमेंट 5 सब के सब इफ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करने वाली हैं। मैंने अटैच कर दिया है इन सारी स्टेटमेंट्स को इफ कंडीशन के साथ। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी, अदरवाइज दे वोंट एग्जीक्यूट एट ऑल। Okay, so let us try an example and see how we can execute if statement in Python. Now let me start the program with print statement. Print statement के अंदर मैं लिख रही हूँ start of the program. अब मैं चाह रही हूँ कि बाकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब इफ कंडीशन के अंदर आए, तो पहले मैं कंडीशन स्पेसिफाई करूंगी। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर इफ कंडीशन मैंने अभी तक नहीं लिखी है, जब तक इफ कंडीशन आप नहीं लिखते हो उससे पहले तक जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सब सीक्वेंशियल फ्लो ही फॉलो करती हैं, और जैसे ही इफ कंडीशन खत्म हो जाती है उसकी बाद की भी जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सब भी सीक्वेंशियल फ्लो ही फॉलो करने वाली हैं। Only the statements under the if condition or attached to the if condition will follow the conditional flow. Okay, so I will take a number by the user. Okay, number is equal to, I'm using input function. I'll write a message, enter a number. Okay, so user will enter a number, so I will have to typecast it to integer. So I'm writing int over here. I will write here enter a number. Okay, now I will put a condition. If number is greater than 10 colon, now observe this. Whenever I will enter this, see, the cursor is 6 spaces ahead. Okay, whenever I enter this, the cursor is 6 spaces ahead. अब यहाँ से जो भी मैं print statement लिखूंगी वो if condition के साथ attached होगी, ठीक है। If the number is greater than 10, print number is equal to number. If number is greater than 10, print number. Okay. After that, if you want to resume the sequential flow,
यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो किसके अंडर आने वाला है, इफ स्टेटमेंट के अंदर। नंबर 1 भी लिख देती हूं मैं, और सपोज मैं यहाँ पे ढेर सारी स्टेटमेंट्स लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे लिख दूंगी स्टेटमेंट नंबर 1 एंड कॉपी, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। ओके, अब यहां से आप देखिए कि मैं वापस यहां पे आ गई हूं, कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में आ चुका है, इफ के बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो जितनी भी स्टेटमेंट्स आप देख पा रहे हैं 6 स्पेसेस अहेड से शुरू हो रही हैं, वो सब की सब इस कंडीशन के साथ जुड़ चुकी हैं। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट सिर्फ तब चलेंगी जब ये कंडीशन आएगी ट्रू। ठीक है, तो जब भी आप कंडीशन लिखोगे आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसे वाले ऑपरेटर्स यूज करो जो या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऑपरेटर्स ही यूज करके कंडीशन डिफाइन करनी होती है। अगर आप एक सिंपली कोई नंबर लेते हैं या कोई स्ट्रिंग लेते हैं तो वो भी पाइथन में कॉरेस्पॉन्ड करती है ट्रू को, और अगर आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेते हैं या 0 लिखते हैं एज एन इंटीजर तो वो कॉरेस्पॉन्ड करती है फॉल्स को। तो उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं कंडीशंस को, बट इट इज मोर मीनिंगफुल टू यूज ऑपरेटर्स एंड देन डिफाइन अ कंडीशन. दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस operator, greater than operator. If number is greater than 10, then all these statements are going to execute. Now just observe this. I'm gonna write here statement number 4 and then statement number 5, statement number 6, statement number 7, and then I'm gonna write print statement, and inside print statement I'm gonna write end of the program. Okay, so start of the program and end of the program. Inside this program you can see first of all हम क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे एक नंबर का, अगर तो वो नंबर 10 से बड़ा है तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स रन करेंगी, अदरवाइज they won't execute at all. But before this if condition there is sequential flow. After this if condition, where is this if condition ending? This if condition is ending here. After the 7th line, that is the 8th line, there will be sequential flow only. So all these statements will execute as it is. They are not based on any of the condition. We have just attached the condition with these many statements, and these are going to follow the conditional flow. Okay, so let me save this and run this. Start of the program, enter a number. Suppose I enter 50. Okay, the number should be greater than 5. The number should be greater than 10 so that the condition holds true and the statements attached to the if condition execute. So if I run it, number is equal to 50, statement 1, statement 2, statement 3, 4, 5, 6, 7. All statements are executing and then end of the program. Okay, if I rerun it, and now if I specify a number less than 10, okay, 5. So now as you can see, statement number 1, 2, 3 and even number is equal to 50. Nothing is executing. It is starting from statement number 4, 5, 6, 7 and end of the program. तो जो भी स्टेटमेंट इफ कंडीशन के साथ जुड़ी हुई हैं वो ही सिर्फ बेस्ड होंगी कंडीशनल फ्लो पे। इससे पहले वाली स्टेटमेंट्स या इसके बाद वाली स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली हैं या डिपेंड नहीं करने वाली हैं कि आप क्या इनपुट दे रहे हो नंबर पे। आप कोई भी इनपुट दो, चाहे वो 10 से बड़ा हो चाहे वो 10 से छोटा हो, ये सारी स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट की ही ना। आपने देखा कि पहली बार में भी स्टेटमेंट 4, 5, 6, 7 और एंड ऑफ द प्रोग्राम ये सब रन हुआ, और सेकेंड में भी रन हुआ, irrespective of the value of the number that you have inputted at run time, ये तो रन कर ही रही हैं, तो ये sequential flow ही फॉलो करेंगी। It is just the statement जो आपने अटैच कर दी है इस if condition के साथ, वो डिपेंड करेंगी इस कंडीशन पे। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये रन करेंगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये रन नहीं करेंगी। ओके, फॉर द एकेडमिक पर्पज हमें फ्लो चार्ट भी डिस्कस करना होता है। फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जो डिस्क्राइब करती है आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स।
तो हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बता पाते हैं कि कौन सा डायरेक्शन है फ्लो का और किस तरफ हमारा जो प्रोग्राम है वो फ्लो करेगा, या इन अ वे किस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। उसके अगर आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बताना हो तो आप फ्लो चार्ट यूज करते हो। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक ओवल शेप में लिखते हैं स्टार्ट और एंड जो है वो ओवल शेप में लिखा जाता है। कंडीशंस के लिए पैरेललोग्राम यूज किया जाता है और स्टेटमेंट्स को, जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती है, उनके लिए रेक्टेंगल यूज किया जाता है। फ्लो के लिए आप एरोज यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस शेप के साथ, स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम और आप एग्जीक्यूशन बताएंगे कि इस तरीके से फ्लो है। स्टार्ट होने के बाद अगर कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है तो वो रन करेंगी, बट यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोग्राम में डायरेक्टली एक कंडीशन है, तो हम कंडीशन लिखेंगे पैरेललोग्राम के अंदर, और जो पैरेललोग्राम के दो एजेस हैं वहां से हम डिफाइन करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो किस डायरेक्शन में प्रोग्राम जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन फ्लो की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब अगर कंडीशन आती है ट्रू तो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 रन करने वाले हैं। ये हम सपोज करके चल रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज कि अगर कंडीशन ट्रू आती है तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, एंड आफ्टर दैट स्टेटमेंट नंबर 4, 5, 6 आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 जो है वो कंडीशन के अंदर है और कंडीशंस के साथ अटैच्ड है। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर आपने ये स्टेटमेंट लिखी होंगी, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3, और उसके बाद नॉर्मल सिक्वेंशियल फ्लो को फॉलो करते हुए आपके पास स्टेटमेंट नंबर 4, 5 और 6 है। ठीक है, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर 1 से लेकर स्टेटमेंट नंबर 6 तक सारी की सारी स्टेटमेंट्स रन करेंगी एंड देन प्रोग्राम विल एंड। But if the condition is false, then only statement number 4, 5 and 6 are going to run and then the program will end. मतलब कि स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 सिर्फ तब रन करेंगे जब कंडीशन आती है ट्रू, अदरवाइज स्टेटमेंट नंबर 4, 5, 6 आर गोइंग टू रन इन एनी केस। मतलब चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, स्टेटमेंट नंबर 4 से लेकर स्टेटमेंट नंबर 6 जो है वो रन करेंगी ही करेंगी। स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 जो है वो इफ ब्लॉक के अंदर है, कंडीशनल ब्लॉक के अंदर है, तो ये कंडीशन पे बेस्ड हो गई। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेंगी, अदरवाइज ये नहीं चलेंगी। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है इफ कंडीशन के लिए। तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि इफ कंडीशन हमने लिखी, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट चले, अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये नहीं चले। मतलब इन एनी वे हम ये पॉइंट भी लेके चल रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनको एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। फिलहाल हम ये बात कर रहे थे, बट व्हाट इफ हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हम चाह रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर ब्लॉक ना चले, मतलब कि अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक ना चले, तो इसके बदले कुछ तो चले। मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये ब्लॉक चल रहा है, अगर ये नहीं चल रहा है तो इसके बदले कुछ तो चले। ऐसा ना हो कि ये भी ना एग्जीक्यूट हो और कुछ और भी ना एग्जीक्यूट हो। मतलब बाकी चीजों को साइड पे रखते हैं, बाकी चीजें तो अपना काम कर ही रही हैं, सिक्वेंशियल फ्लो अपना ही रही है, बट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इसके बदले में कुछ तो चलना चाहिए। तो उस बदले में चलाने के लिए, मतलब कि एक ऑल्टरनेटिव प्लान हमारे पास अगर रखना है हमें, कि अगर ये ना चले तो हमारे पास प्लान बी हो, जैसे हम हमेशा करते हैं कि अगर प्लान ए वर्क नहीं करता तो प्लान बी रहे, और हमेशा एक डिफॉल्ट प्लान भी रखते हैं हम अपने पास। तो उस तरीके की अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि अगर हमारे पास ये चीज वर्क नहीं कर रही है, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तो उसके बदले में हम क्या चलाना चाहते हैं, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं इफ एल्स कंडीशंस का। अभी तक ये सारी स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट है किसी भी कंडीशन के। इन सारी स्टेटमेंट्स को चलने के लिए कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली एग्जीक्यूट कर रही हैं। बट मैं चाह रही हूँ कि इन सारी स्टेटमेंट्स को मैं एक कंडीशन का पार्ट बना दूं, वो भी कुछ इस तरीके से कि अगर ये सारी स्टेटमेंट्स नहीं चल रही हैं तो इनके बदले में ये स्टेटमेंट्स चले। मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये सारी स्टेटमेंट्स चले, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये स्टेटमेंट चले, जो कि बाय द वे फॉल्स में तो चल ही रही थी, बट ऐसे नॉर्मली जो ये प्रोग्राम हमने लिखा इसमें ट्रू के केस में भी चल रही थी, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट थी इस इफ ब्लॉक के। अब मैं चाह रही हूँ कि इसको कुछ इस तरीके से मैं इस इफ ब्लॉक का पार्ट बनाऊं कि
नॉर्मली अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये सारी स्टेटमेंट्स ना चले, बट अगर कंडीशन फॉल्स है तब ही ये चले। बट उस केस में एक और चीज हो जाती है कि अगर तो ये ट्रू के केस में अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट्स नहीं रन करेंगी, जो कि अभी फिलहाल कर रही हैं। इस प्रोग्राम के हिसाब से ये चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो ये रन करने वाली थी। अब मैं अगर इसे इस का पार्ट बना दूंगी, इस कंडीशन का पार्ट बना दूंगी, तो ऐसा होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन नहीं करेंगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रन करेंगी। मतलब कि मैं ऑल्टरनेटिव बनाना चाह रही हूँ इन सारी स्टेटमेंट्स का, कि अगर मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जब मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तब मैं ऑल्टरनेटिव चाहती हूँ कि इन कंडीशंस के, इन स्टेटमेंट्स के बदले ये सारी स्टेटमेंट्स चले। तो मैं यूज कर सकती हूँ एल्स ब्लॉक का। यहाँ पे मैं लिखूंगी एल्स। अब देखो मैंने एल्स लिखा, यहाँ से एंटर प्रेस किया था, इसलिए प्रिंट के नीचे ही डायरेक्टली टाइप हो गया। तो मैं इसे यहाँ से वापस करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ये इफ के नीचे आए। मैं इस एल्स को इस इफ ब्लॉक का पार्ट ना बनाते हुए इस प्रॉपर सिंटेक्स में लिखूंगी। ये इसका प्रॉपर सिंटेक्स होता है, पहले आप इफ लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, देन जो भी आपको इफ ब्लॉक में स्टेटमेंट्स लिखनी है आप यहाँ पे स्पेसिफिकली वो वाली स्टेटमेंट्स लिखोगे जो आप चाहते हो कि तब चले जब कंडीशन ट्रू हो। तो माइंड दीज वर्ड्स, अगर कंडीशन ट्रू हो तब कौन सी स्टेटमेंट चले वो आपको यहाँ स्पेसिफाई करनी होती है, और फिर एल्स ब्लॉक में वो वाली स्टेटमेंट्स डिफाइन करनी होती हैं, स्पेसिफाई करनी होती हैं जो तब चले जब ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स आए। तो इससे इस तरीके से मैंने एसोसिएट कर दिया। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इफ, यहाँ पे लिख रही हूँ एल्स, और इस एल्स ब्लॉक के अंदर अगर मुझे स्टेटमेंट्स डालनी है तो वो मुझे अगेन आइडेंटेशन की मदद से डालनी है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो एल्स के डायरेक्टली नीचे से शुरू हो रही है, दैट मीन्स ये इस एल्स ब्लॉक का पार्ट नहीं है। इसका पार्ट बनाने के लिए मुझे फिर से आइडेंटेशंस यूज करनी पड़ेंगी, यानी 6 स्पेसेस अहेड जाके अगर ये स्टेटमेंट्स लिखी होंगी तो ये सब बन जाएंगी एल्स ब्लॉक का पार्ट। अब ये सारी स्टेटमेंट्स बन गई हैं एल्स ब्लॉक का पार्ट, बट ये जो लास्ट स्टेटमेंट है आप देख रहे हैं ये एल्स के बिल्कुल नीचे से शुरू हो रही है, कोई स्पेस नहीं है, तो ये किसी भी कंडीशन का पार्ट नहीं होगी। तो अब ये पूरा का पूरा आपके पास एक इफ एल्स ब्लॉक बन गया है। ये कंडीशनल फ्लो पे चलेगा, बट ये जो है लास्ट लाइन ये किसी भी कंडीशन का पार्ट नहीं है। चाहे तो ये ट्रू आए चाहे ये फॉल्स आए कंडीशन, ये तो रन करने ही वाली है, लास्ट स्टेटमेंट रन करनी ही करनी है। दिस वोंट depend on any of the condition, but these will be conditional statements। ये condition based होंगी। अगर तो condition true होगी तो ये नहीं चलेंगी, बट अगर कंडीशन फॉल्स हुई तब उस केस में ये चलेंगी। नाउ आई हैव प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव कि अगर ये नहीं चल रही हैं तो ये चले, और अगर ये चल गई तो ये ना चले। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा है, और ये प्रॉपर सिंटेक्स हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो इसे सेव करते हैं और अब इसे रन करके देखते हैं। इसे मैं क्लियर कर देती हूँ। स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एंटर अ नंबर। नाउ आई एम गोना एंटर, अगेन मैं 50 कर रही हूँ ऐड। Number is equal to 50, statement number 1, statement number 2, statement number 3 and end of the program. As you can see, statement number 4, 5, 6 और 7 ये नहीं एग्जीक्यूट हुई हैं। ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं क्योंकि मैंने जो नंबर लिखा वो 10 से बड़ा है, यानी कंडीशन हो गई है ट्रू, तो ये स्टेटमेंट्स चली। ये स्टेटमेंट स्किप हो गई और उसके बाद सीक्वेंशियल फ्लो के तहत ये प्रोग्राम एंड ऑफ द प्रोग्राम वाली स्टेटमेंट जो है ये रन करेगी। ठीक है, अब एक और कंडीशन लेते हैं जहां पे मैं कंडीशन को कर दूंगी फॉल्स। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम हो गया, मतलब पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है। अब सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सी वाली, ये वाली इनपुट स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट हो रही है, तभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंटर अ नंबर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना एंटर अ नंबर, तो यहीं पे स्पेसिफाई हो रहा है एंटर अ नंबर। अब मैं लिखूंगी कंडीशन जिसमें मैं 10 से छोटा नंबर लूंगी ताकि कंडीशन हो जाए फॉल्स। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगी, तो आप देखो कंडीशन फॉल्स हो गई है, और यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4, 5, 6, 7 एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। एज यू कैन सी एंड ऑफ द प्रोग्राम इस कंडीशन में भी चल रहा है, एंड ऑफ द प्रोग्राम इस कंडीशन में भी चल रहा है। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड यहाँ पे एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये दोनों इरिस्पेक्टिव चलेंगे इस कंडीशन के।
जो भी चीजें मैंने इस इफ ब्लॉक के साथ और एल्स ब्लॉक के साथ लगा दी हैं, यही आ जाएंगी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। बाकी की सारी जो है वो सीक्वेंशियल फ्लो फॉलो करेंगी और एंड ऑफ द प्रोग्राम वाली ये जो स्टेटमेंट है ये हर केस में रन करेगी। बट ये वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंडीशन पे डिपेंड करने लग गई है। तो ये होती है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसका भी फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा होगा। अगर हम इफ एल्स यूज करते हैं तो कैसा एग्जीक्यूशन होगा। आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के बाद आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो कंडीशन आएगी। कंडीशन में दो एजेस हैं, इनका यूज करके आपको डिसाइड करना है कि अगर कंडीशन ट्रू आती है तो आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है और फॉल्स आती है तो कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो आपने लिख दिया कंडीशन, और अगर कंडीशन आती है ट्रू तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 चलेंगी और प्रोग्राम एंड कर जाएगा, जैसा कि हमने लिखा एंड ऑफ द प्रोग्राम। ओके, अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो स्टेटमेंट नंबर 4, 5, 6 चलेंगी और फिर प्रोग्राम एंड करेगा। इफ ब्लॉक में हमने क्या किया था, इफ ब्लॉक में हम देख रहे थे कि स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 सिर्फ तब चल रहे थे जब कंडीशन ट्रू थी। बट स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 के बाद भी स्टेटमेंट नंबर 4, 5, 6 एग्जीक्यूट हो ही रहे थे, चाहे कंडीशन फॉल्स थी चाहे कंडीशन ट्रू थी। स्टेटमेंट नंबर 4, 5, 6 रन कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अगर कंडीशन आती है फॉल्स तो स्टेटमेंट नंबर 4, 5, 6 रन करेंगे, बट अगर कंडीशन आती है ट्रू तो ये नहीं रन करेंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है फ्लो चार्ट, और आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन भी इसी तरीके से चेंज हो चुका है। अगर ट्रू आती है तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स आती है तो ये ब्लॉक चलेगा और उसके बाद प्रोग्राम एंड कर जाएगा। इसी तरीके से हम इफ एल स्टेटमेंट भी यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ कंडीशन नंबर 1, और अगर कंडीशन नंबर 1 होती है ट्रू तो हम चाहते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट को रन करवाना चाहते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन नंबर 1। तो इफ कंडीशन नंबर 1 इज ट्रू देन स्टेटमेंट नंबर 1 विल एग्जीक्यूट। इसके साथ अगर हम चाहते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है तो कोई और कंडीशन चेक कर लो। ऐसा भी तो केस आ सकता है कि अगर हमारी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम चाहेंगे यार दूसरी कंडीशन तो फुलफिल कर लो, तो भी हम चांस दे देंगे कि आप एग्जीक्यूट हो जाओ। अगर वो भी आप एग्जीक्यूट ना कर पाए तो एल्स ब्लॉक ही चला दो। मतलब कि कंडीशन 1 भी ट्रू नहीं हुई, कंडीशन 2 भी आपसे फॉलो नहीं हुई है, कंडीशन 2 भी फॉल्स है, सारी कंडीशंस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सब फॉल्स हैं, तो भी आपके पास एक ऑल्टरनेटिव हो जो आप डिफॉल्ट यूज कर सकते हो कि अगर कोई भी कंडीशन नहीं चल रही है तो भी आप एक स्टेटमेंट चला पाए, आप बता पाए कि बाकी सब कंडीशंस जब फॉलो नहीं हो रही हैं तो क्या करना है, तो कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है। तो वो स्पेसिफाई करने के लिए आप एल स्टेटमेंट यूज करते हैं, पर ध्यान रखना है कि एल स्टेटमेंट सिर्फ तब चलती है जब कोई भी कंडीशन फॉलो ना हो। अगर एक भी कंडीशन फॉलो हो जाए तब एल स्टेटमेंट कभी भी रन नहीं करती है। तो आप लिखोगे इफ कंडीशन नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 1 चले, फिर उसके बाद आप लिखोगे एलिफ। एलिफ स्टैंड्स फॉर एल्स इफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एलिफ। एलिफ भी एक कीवर्ड है, तो एलिफ लिखोगे, उसके साथ आप लिखोगे कंडीशन नंबर 2 और फिर कॉलन यूज करके लिखोगे स्टेटमेंट नंबर 2 कि भाई अगर कंडीशन नंबर 1 फॉल्स है तो कंडीशन नंबर 2 चेक करो। अगर कंडीशन नंबर 2 आ जाती है ट्रू तो फिर आप स्टेटमेंट नंबर 2 रन कर दो। अगर वो भी फॉल्स हो गई, मतलब कंडीशन नंबर 2 भी फॉल्स हो गई, तो आप एल्स कंडीशन में जो स्टेटमेंट है उसे रन कर दो, यानी स्टेटमेंट नंबर 3 रन कर दो। ओके, अब यहाँ पे आ गई सिंगल सिंगल स्टेटमेंट्स की बात। तो अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है तो वही आइडेंटिटेशन फॉलो करके आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, भाई कंडीशन नंबर 1 फॉलो होती है यानी ट्रू आती है तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चलाओ। अगर तो कंडीशन नंबर 1 फॉल्स आती है तो कंडीशन नंबर 2 चेक कर लो, और अगर कंडीशन नंबर 2 ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चल जाए, और अगर कंडीशन नंबर 2 भी फॉल्स हो गई तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चल जाए। ओके, इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। तो इसके लिए हम डायरेक्टली एक प्रोग्राम ही सॉल्व कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो इसके लिए हम इफ एलिफ कंडीशन यूज करने वाले हैं। तो कंडीशन यूज करने से पहले हम नंबर इनपुट करवाएंगे यूजर से। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं a, जिसमें हम इनपुट करवाएंगे क्या, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, तो इसकी भी टाइप कास्टिंग करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है कि स्ट्रिंग रिटर्न होती है इनपुट फंक्शन से, तो उसकी इंटीजर में टाइप कास्टिंग कर दी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, b ले लूंगी, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। ओके, सो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर एंड एंटर थर्ड नंबर।
अब इस तरीके से A B C 3 नंबर ले लिए हैं मैंने। आप XYZ कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अपने हिसाब से कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। मैंने ABC रखा है। ABC 3 नंबर्स है मेरे पास और 3 नंबर्स में से मुझे चेक करना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। इसके लिए मैं कंडीशन यूज कर सकती हूँ, इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कंडीशंस मैंने लगा लिए हैं यहाँ पे। इफ A इज ग्रेटर देन B एंड इफ A इज ग्रेटर देन C ऑल्सो, देन कॉलन, और इसके साथ मैंने एंटर कर दिया है। आप सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं सिंगल स्टेटमेंट ही यूज करने वाली हूँ। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं इसको, A कॉमा इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ओके, तो इसे कॉपी कर लेती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अगर डायरेक्टली एंटर प्रेस करती हूँ तो आप देखो मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट के नीचे आ गई हूँ। अगर यहां से भी कुछ भी लिखूंगी मैं, वो इफ ब्लॉक के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो मुझे इफ ब्लॉक के अंदर तो लिखना नहीं है, मुझे इस ब्लॉक से बाहर जाना है, तो मुझे कर्सर वापस यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब मैं लिखूंगी एलिफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर बी सबसे बड़ा है तो क्या प्रिंट कर दो, B comma is greatest of all। ओके, अब अगर A भी सबसे बड़ा नहीं है, B भी सबसे बड़ा नहीं है, तो आपको क्या कंडीशन लिखने की जरूरत भी है? नहीं है ना, तो आप सीधा लिखोगे else, सीधा ही प्रिंट कर दो कि C जो है वो सबसे बड़ा है, C is greatest of all। ठीक है, तो इसमें तो आपको कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने पहले ही चेक कर दिया भाई A बड़ा है क्या। अगर ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो फिर आप चेक करोगे क्या B बड़ा है। अगर ये भी फॉल्स हो गई तो डेफिनेटली अगर A भी बड़ा नहीं है, B भी बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली C ही बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे कंडीशन ना लिखते हुए सीधा इसको ऐसे लिखोगे। इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेट मी क्लियर दिस। एंटर फर्स्ट नंबर 50, 40, 30। 50 is greatest of all, so our program is running correctly। फिर से रन करते हैं 40, 20, 90, 90 is greatest of all। तो इस तरीके से आपका एक प्रोग्राम बन गया है यूजिंग एलिफ कंडीशन। अब ध्यान रखना है कि एलिफ जो शुरू होगा वो इफ के बिल्कुल नीचे से शुरू होगा। आप इफ ब्लॉक के अंदर लिख देंगे तो एरर आएगा। अब इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा, स्टार्ट होगा प्रोग्राम, कंडीशन 1 चेक की जाएगी, कंडीशन 1 के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि प्रोग्राम का फ्लो किस तरफ जाने वाला है। अगर कंडीशन 1 होती है ट्रू, देन स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, ये तीनों की तीनों रन करेंगी और प्रोग्राम कर देगा एंड। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पे एंड यूज किया, आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा फ्रेम छोटा पड़ गया है इसके लिए। स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 जैसे ही रन करेंगी तो प्रोग्राम एंड कर जाएगा। तो ये हो गया अगर तो कंडीशन 1 हो जाती है ट्रू। बट अगर कंडीशन 1 हो जाती है फॉल्स, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप कंडीशन नंबर 2 चेक करो। कंडीशन नंबर 2 अगर आती है ट्रू, तो क्या होगा, कंडीशन स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 6 रन करेंगे और फिर प्रोग्राम एंड करेगा। तो अगर आप फ्लो देखो तो फ्लो समझने की कोशिश करना। फ्लो क्या है, स्टार्ट होगा, कंडीशन 1 चेक होगी, अगर तो ट्रू हुआ तो इस तरीके से चलेगा जो आपको फ्लो दिख रहा है, लेकिन अगर फॉल्स हुआ तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप देखो कंडीशन 2 चेक हो रही है, कंडीशन 2 चेक होगी, कंडीशन 2 में अगर ट्रू आया तो स्टेटमेंट नंबर 4, 5, 6 चलेंगे और फिर एंड होगा। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर कंडीशन नंबर 2 का जो रिजल्ट है वो ट्रू आता है तो स्टेटमेंट नंबर 4, 5, 6 चलेंगे। बट क्या उस केस में स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 चल रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 हो गई है फॉल्स, तो उसके अंडर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कैसे रन करेंगे, वो नहीं रन करेंगे। जो कंडीशन नंबर 2 फॉलो करती हैं, अगर कंडीशन नंबर 2 फॉलो हो रही है तो कंडीशन नंबर 2 यानी एलिफ वाले ब्लॉक की स्टेटमेंट्स चलने वाली हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। बट अगर कंडीशन नंबर 2 भी फॉल्स हो जाती है तो क्या चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। तो फिर उस केस में स्टेटमेंट नंबर 7, 8 और 9 चलेंगे और फिर प्रोग्राम एंड करेगा। ठीक है, अभी जितनी भी स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट के ब्लॉक्स देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये कभी भी एक साथ नहीं चलने वाले हैं।
हर बार या तो ये स्टेटमेंट चलेगी या ये ब्लॉक चलेगा या ये ब्लॉक चलेगा या ये ब्लॉक चलेगा, एक साथ ये कभी भी नहीं चलने वाले हैं। अगर कंडीशन 1 फुलफिल होगी तो ये ब्लॉक चलेगा, कंडीशन 2 फुलफिल हो गई तो ये ब्लॉक चलेगा, और अगर दोनों ही फुलफिल नहीं हुई तो ये ब्लॉक चलेगा, बट ये एक साथ कभी नहीं चलने वाले। एक और चीज डिस्कस करने वाली है कि अगर हम कोई भी कंडीशन लिखते हैं, इफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन या एल्स ब्लॉक लिखते हैं, उसमें से कौन सी चीजें मैंडेटरी हैं और कौन सी चीजें ऑप्शनल हैं। तो सपोज मैं एक नंबर ले रही हूँ एज इनपुट बाय यूजर, तो मैं लिखूंगी एंटर अ नंबर। ओके, सो इसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इफ नम इज ग्रेटर देन 10। ओके, तो प्रिंट कर दो। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिस इज इफ ब्लॉक। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन नहीं लिखती हूँ, एलिफ कंडीशन नहीं लिखती हूँ, तो ये रन करने वाला है एंटर अ नंबर 10। तो ये प्रॉपरली चल गया है, बट आउटपुट कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लिखा है और मेरी कंडीशन थी अगर 10 से बड़ा नंबर है तो ये ब्लॉक चले। अब मैंने 10 लिख दिया है तो इसलिए ब्लॉक नहीं चला है, बट ये रन कर रहा है। एल्स और एलिफ की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एल्स प्रिंट दिस इज एल्स ब्लॉक। ओके, तो इफ कंडीशन में हटा रही हूँ तो आप देखो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ जाएगा। देखो सिंटेक्स एरर आ गया है यहाँ पे क्योंकि मैंने इफ ब्लॉक नहीं लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इफ की जगह सपोज मैं एलिफ लिखती हूँ, इफ नहीं लिखा है एलिफ लिखा हुआ है, एल्स लिखा हुआ है, तो भी सिंटेक्स एरर आएगा क्योंकि इफ मैंडेटरी होता है। एलिफ और एल्स के बिना प्रोग्राम चल जाता है, बट इफ के बिना अगर आप एलिफ और एल्स यूज कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। लास्ट टॉपिक इज नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि इफ के अंदर आप इफ लिख रहे हैं या आपके पास सपोज यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ प्रिंट दिस इज इफ ब्लॉक। ओके, और इफ ब्लॉक के बाद कौन सा ब्लॉक हम लिख सकते हैं, या तो हम एलिफ ब्लॉक लिख सकते हैं या हम एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लिखती हूँ इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो इफ ब्लॉक चले, एलिफ ब्लॉक चलेगा नंबर अगर 10 के बराबर है, नंबर इक्वल टू 10, तो प्रिंट कर। उसके बाद मैं एल्स स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ। यहाँ पे एल्स लिखा, एल्स के साथ कभी भी कोई कंडीशन नहीं होती है, याद रखना। अब आप देखो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है और ये भी एक स्टेटमेंट है। अगर हम चाहें तो हम इफ के अंदर भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, यानी इफ के अंदर एक और इफ भी लिख सकते हैं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इफ नंबर इज ग्रेटर देन 50 देन प्रिंट। और साथ ही साथ आप और भी कोई स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एलिफ नंबर इक्वल्स टू 50 प्रिंट। ओके, आप चाहें तो आप एल्स भी लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है खाली इफ के अंदर इफ लिख सकते हैं, एलिफ के अंदर भी आप इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर मैं ये हाईलाइटेड कंटेंट जो दिखा रही हूँ, ये सारा का सारा किसके अंदर आ रहा है, इस इफ कंडीशन के अंदर आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट चलेगी, देन ये स्टेटमेंट को देखा जाएगा। अब ये स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट, फिर से एक कंडीशन चेक होगी और उसके मुताबिक ये स्टेटमेंट रन करने वाली है। मतलब कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में भी पहले तो सिक्वेंशियल फ्लो ही चल रहा होता है। अब अगर देखा जाए कि सीक्वेंशियल फ्लो के बाद एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी हुई है तो फिर कंडीशन पे डिपेंड कर जाएंगी चीजें। बट ऐसे एक ब्लॉक के अंदर भी जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है वो सीक्वेंशियली ही एग्जीक्यूट होती है। अब अगर मैं एलिफ की भी बात करूं, एलिफ के अंदर भी एक ही ले लेते हैं कोई भी। सपोज यहाँ पे मैं ट्रू लिख देती हूँ, सिंपली एक सिंपल सी कंडीशन है इफ ट्रू। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देती हूँ दिस इज आउटर इफ, यहाँ पे ये है आउटर एलिफ और ये है आउटर एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एलिफ के अंदर भी मैंने इफ कंडीशन लिख दी, तो अब मैं एल्स के अंदर भी एक कंडीशन लिख देती हूँ। सेव करते हैं, अब रन करके देखते हैं इसे। तो देखो ये रन करेगा
एंटर अ नंबर, अब मैं नंबर रन करती हूँ, सपोज 40, ओके। दिस इज आउटर इफ ब्लॉक। तो क्या होगा, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, नंबर ग्रेटर देन 10 है, यस इट इज ग्रेटर देन 10, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दिस इज आउटर इफ ब्लॉक। अब चेक किया जाएगा क्या नंबर 50 से बड़ा है, नंबर हमने इनपुट किया है 40, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये नहीं चलेगी। फिर एक और कंडीशन है एलिफ कंडीशन, क्या नंबर इक्वल टू 50 है, नहीं है, तो ये भी कंडीशन नहीं चलेगी। अब ये वाला ब्लॉक चल रहा है, तो क्या ये ब्लॉक्स चलेंगे, ये ब्लॉक्स कभी भी नहीं चलेंगे। ब्लॉक वाइज अगर आप देखो, ये पूरा का पूरा ब्लॉक है इफ के अंदर, आउटर इफ के अंदर, तो ये रन कर रहा है, तो इनका तो सवाल ही नहीं उठता कि ये रन करेंगे, तो ये पिक्चर से आउट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें तो अगर ये रन करेगा तो ये रन नहीं करेगा। अब ये दोनों के दोनों ही रन नहीं कर रहे हैं और हमने एल्स ब्लॉक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होगी, दिस इज आउटर इफ ब्लॉक। अब एक और ले लेते हैं केस, यहाँ पे मैं 50 लिखती हूँ, तो क्या होगा, दिस इज आउटर इफ ब्लॉक एंड दिस इज इनर इफ ब्लॉक। पहले कहाँ से स्टेटमेंट रन हो रही है, आउटर इफ ब्लॉक से, फिर स्टेटमेंट चेक हो रही है, ये वाली कंडीशन चेक हो रही है, क्या 50 से बड़ा है, नहीं 50 से बड़ा तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। फिर चेक होगी कंडीशन, क्या नंबर इक्वल टू 50 है, यस इट इज इक्वल टू 50, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा दिस इज इनर इफ एलिफ ब्लॉक। तो कहने का मतलब ये है कि आप इफ के अंदर या एलिफ के अंदर या एल्स के अंदर, ये जो भी ब्लॉक्स आप ले रहे हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, उन्हें आप नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलेंगे, यानी इफ के अंदर इफ लिख रहे हो तो नेस्टेड इफ हो गया वो, तो इस कॉन्सेप्ट को नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। So this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.